Hello everyone, this is the second part of numericals of chapter 1 electrostatics. In this video, I'm going to cover some basic numericals based on the topics we have covered in second video on electrostatics. Alright, so let's see our first question. It says an alpha particle is placed in an electric field of 15 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. Calculate the force on the particle. सो सबसे पहले हमें देखना है कि अल्फा पार्टिकल गिवन है इसमें, राइट। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल वाली वीडियो में भी बताया था। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है। सो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ योर प्रोटॉन होता है, राइट। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना हो गया? 3.2 इंटू 10 raised to power -19 कूलम, ऑलराइट। Then we have electric field given with us, and it is 15 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb. All right. Now we need to calculate the force on the particle. Okay. So here electric field is given, charge is given. तो हमें एक रिलेशन पता है जो फोर्स, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है, एंड इट इज F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, राइट। ये हमने डेरिवेशन के टाइम पढ़ा था। सो नाउ वी कैन सॉल्व इट। So that's your answer. All right. So force experienced by the particle, the alpha particle, when it is placed within the electric field of this much magnitude, so it will experience this much Newton force. All right. So this is your answer. You can leave your answer in a statement, as I always say. Right. I'm not writing it again and again. Now let's have a look on our second question. So our second question says 2 point charges Q1 and Q2 1 meter apart. Find the electric field at the midpoint between the charges. Okay, so सबसे पहले हमें क्या करना है कि डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो Q1 Q2 चार्जेस हैं, उनके बीच में कुछ R डिस्टेंस है। वी नो द मैग्नीट्यूड नाउ कि R डिस्टेंस कितना है, और हमें फील्ड निकालनी है एट द मिड पॉइंट। ऑलराइट। सो उनके जो भी सेंटर से सेंटर तक जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट O पे सपोज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ऑलराइट। तो अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी पता है, ओके। हमें उनकी पोलैरिटी भी पता है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ओके। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पे अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से O के ऊपर इम्पोज हो रही होगी वो एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। देन Q2 से जो हो रही होगी, बिकॉज अगेन Q2 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड हो रही होगी, और एंड इज लाइक दैट। तो O पॉइंट पे एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली हमें डायरेक्शन कंसिडर करते हुए और इन इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, राइट। ऑल द यूनिट्स आर इन SI सिस्टम, सो वी नीड नॉट टू कन्वर्ट दम। अब हमें क्या करना है कि फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड को इवेल्युएट करना है एट O, विच इज अगेन अ वेक्टर सम of E1 and E2, right? And when I say vector sum, we need to consider the direction. So it is simply a sum as per their nature, means vector, but according to their direction, one has to be positive and one has to be negative. So suppose we are considering E1 as positive, okay, and E2 as negative, considering right hand side to be positive, okay. So we can convert it. Now E1 minus E2 is the actual thing we need to do. So now we can put the formula here, which becomes 1 upon 4 pi epsilon naught, and electric field is Q1 upon R1 distance, which is R by 2, alright, and its whole square, minus 1 upon 4 pi epsilon naught again, and the second charge divided by R by 2 whole square. So this becomes your formula. Now you can take the common from these two.
So we can see that 1 upon 4 pi epsilon naught is common plus r by 2 का whole square, that means 4 upon r square you can write. Yeah, q1 minus q2 आ गया, right? Now you can put the values and solve it. Okay, either you can use calculators or you can solve it manually, because CBSE में आपको calculators नहीं है तो आप manually solve कर सकते हो, right? Right, so here we have our result, which is minus 7.2 into 10 power 11 Newton per Coulomb. Now this negative sign is representing that हमने अगर E1 के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था और E2 के डायरेक्शन को नेगेटिव माना था, तो दिस नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि O के ऊपर एक्ट कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स Q1 जा रही है. नाउ यू कैन राइट इट इन स्टेटमेंट दैट EO इज 7.2 into 10 raised to the power 11 Newton per Coulomb in the magnitude, and the direction is towards Q1 charge. Alright, so that's your complete answer for the first part. Alright, now we have our second part. Second part says that a point on a line joining the charges such that it is 0.05 meter away from Q2 and 0.15 meter away from Q1. Okay, now in the same diagram we need to find out that where is this point. As you can see कि ये Q2 चार्ज से कम दूर है और ये Q1 चार्ज से ज़्यादा दूर है, तो वी नीड टू फाइंड आउट कि ये लोकेशन कहाँ होगी. सी इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 0.1 मीटर, राइट? तो 0.1 तक तो इनके बीच का ही डिस्टेंस है, और अगर कोई पॉइंट 0.15 मीटर अवे है तो दैट्स फॉर ऑब्वियस कि ये Q1 Q2 को लाइन जो ज्वाइन कर रही है इससे कहीं आगे की तरफ हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो द न्यू पॉइंट P इज हियर. अब हमने देखा कि ये कैसे कि 0.15 इसका डिस्टेंस है फ्रॉम Q1 चार्ज, एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये 0.15 है और इनके बीच का डिस्टेंस हमारा 0.1 है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस बचा वो है 0.05 मीटर. सो Q2 से नेचुरली ये 0.05 मीटर अवे हो चुका है, राइट? तो इस पॉइंट P पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. अब नाउ अगेन फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सी यहाँ पे Q1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट पड़ेगी, ओके, और Q2 की वजह से भी टुवर्ड्स राइट पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं और ये पॉइंट P दोनों के ही राइट में लोकेट करता है, और जब दोनों के राइट में लोकेट करता है तो ये अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा. Okay, now solving it, again it is the vector sum, so EP you can say is again the vector sum of electric fields. Now because it is in the same direction, तो हम इनको add करने वाले हैं, right? So writing the formulas and again solving it in the same way, this, right? Away from both the charges. Right, so you can find out the electric field like that. Okay, now we talk about our third question. So now the third question says a stationary oil drop between two parallel plates has a charge this much and a weight of 1.6 into 10 raised to the power minus 14 Newton. Find the electric field acting on this drop. Now we need to understand कि कोई oil drop stationary कैसे हो सकती है. Okay, stationary का मतलब क्या है कि कोई दो plates हैं जिनके बीच में oil drop stationary है, right? रुकी हुई है. तो रुकने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी इसका वेट है जो उस ड्रॉप को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, उस वेट के अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी, राइट? सो नेचुरली अगर हमारा कोई मास m की ऑयल ड्रॉप है तो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ रही है जो नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रही है वो, और इस mg के ही अगेंस्ट हमको एक फोर्स चाहिए जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी, राइट? वो फोर्स कितनी होनी चाहिए वो हमें निकालनी है, ठीक? We need to direct the electric field in the opposite direction to that of the action of the gravity, right? So now the oil drop has a charge of 3.2 into 10 raised to the power minus 19. That means यहाँ पे चार्ज की पोलैरिटी नहीं गिवन है, इसका मतलब ऑयल ड्रॉप कैसी है? पॉजिटिव है इन नेचर. और अगर हमें पॉजिटिव चार्ज को
ऊपर की तरफ डायरेक्ट करना है तो नीचे हमें प्लेट्स कैसी चाहिए होंगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव नेचर की चाहिए होंगी. नाउ यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड दिस ड्रॉप. तो यहाँ पे हमने फोर्स की जगह इसका वेट क्यों रखा, बिकॉज हमें पता है कि अगर इस ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी करना है तो इसके जो एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर जो एक्शन है वो है उसका वेट. तो इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अगर हम दे देंगे तो ये बॉडी स्टेशनरी रहेगी. ऑलराइट, ऑलराइट, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5.0 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. And as you know, electric field is a vector quantity. We need to mention the direction also. So it is vertically upward. Alright, now let's have a look on our fourth question. It says 2-point charges plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed 1 mm apart. Calculate the dipole moment. राइट, सो डाइपोल मोमेंट अब हमें यहाँ पे निकालना है. ओके, दो चार्जेस हमें गिवन है. राइट, सो Q1 इज पॉजिटिव 5 microcoulomb and as you need to convert it in the SI unit, so we need to convert it. It is 10 to the power minus 6 because माइक्रो की जगह हम 10 to the power minus 6 लगा के उसको कूलम में लिख सकते हैं. Similarly, Q2 becomes negative of 5 into 10 to the power minus 6 coulomb. Distance is given 1 mm, which is again in SI unit 1 mm becomes 1 into 10 to the power minus 3 meter. Now you can find out the dipole moment. Dipole moment का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई दो चार्जेस हैं जिनका पोलैरिटी अपोजिट होना और मैग्नीट्यूड सेम होना ज़रूरी है, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस L है तो हम डाइपोल मोमेंट कैसे बोलेंगे, दैट डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज. ठीक है, कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व इट. 5 into 10 to the power minus 9 डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट हमारा कितना हो गया देखते हैं. तो कूलम है और मीटर है, तो कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया. सो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर. 5 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is the dipole moment of this combination. Right, now let's have a look on our last question. It says a system has two charges QA and QB at point A which is given in the coordinate system. Right, coordinate system आपको पता है x y and z वाला सिस्टम है ये, और उनकी लोकेशन को डिफाइन कर रखा है. सो x और y दोनों जीरो हैं और z की कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन है A और B में. इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स जो भी ये चार्जेस हैं ये z एक्सिस पे लाई करने वाले हैं. राइट, तो अगर हम ड्रॉ करें अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस को, सो इफ वी हैव x हियर and if we have y here and if we have z, it is coming out of the paper but हम 2 dimensional के डायग्राम में दिखा नहीं सकते, so that's why it is this. Right, so z and z dash is like that. तो जो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं वो पहला पॉइंट कहाँ पे है, 0 0 minus 15, that means somewhere here. ठीक है, on the negative axis of z. Right, then we have b on the positive side of z axis, so it is here. So a और b पॉइंट ये हैं और इनके ऊपर हमारे जो चार्जेस हैं QA QB वो प्लेस्ड हैं. सो डाइपोल जो है वो z एक्सिस के अलोंग यानी एक तरीके से पेपर के परपेंडिकुलरली वो रखा हुआ है. ओके, और अब इस डाइपोल का हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है एंड टोटल चार्ज निकालना है इस पूरे डाइपोल पे. सी हमारे जो चार्ज है वो Q है पॉजिटिव है और B पे QB जो चार्ज है वो नेगेटिव है. राइट, सो नेट चार्ज ऑफ अ डाइपोल क्या होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और इक्वल मैग्नीट्यूड का ही नेगेटिव है तो इट बिकम्स ज़ीरो. ऑलराइट, सो वी ऑलवेज हैव ज़ीरो नेट चार्ज ऑन डाइपोल सिस्टम. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अगर बात करें तो वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट क्या करना है, डाइपोल मोमेंट में हमें एक चार्ज को लेना है और मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये करना है. राइट, तो अब हमारे पास पोलैरिटी
को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना होता, सिंपली हमें क्या देखना है कि इट इज 0.25 माइक्रोकूलम. ऑलवेज रिमेंबर टू कन्वर्ट इट इन SI यूनिट्स. 10⁻⁶ इंटू द डिस्टेंस कितना है. अब देखिए यहाँ से ओरिजिन से हमारा ये 15 उधर है और 15 इधर है, यानी कि नेट डिस्टेंस बीच में कितना हो गया 30 यूनिट्स. और यूनिट्स कितनी है सेंटीमीटर. तो 30 सेंटीमीटर हमें गिवन है. नाउ सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻² से मल्टीप्लाई करके. नाउ यू कैन सॉल्व इट. ऑलराइट, सो वी हैव आवर डाइपोल विच इज 7.5 इंटू 10⁻8 and the unit is coulomb meter again, right? Now the direction of the dipole moment हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो हम कह सकते हैं from B towards A or simply just towards A. Alright, so this is how you can represent your answer in the statement. Okay, so that's all we had to learn in this video. If you found it useful, then please hit the like button, share it with your friends and subscribe my channel. See you in the next video.